سیالکوٹ کی نجی فیکٹری میں مشتعل افراد کے ہاتھوں غیر ملکی مینیجر کی ہلاکت کا واقعہ، مرکزی ملزم فرحان ادریس سمیت واقعے میں ملوث 100 سے زیادہ گرفتار، بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ سری لنکن فیکٹری مینیجر کا اندونا قتل باعث شرم ہے، تحقیقات کی خود نگرانی کر رہا ہوں، ذمہ داروں کو سزا ہوگی، وزیر اعظم عمران خان۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجپاکسے کا سیالکوٹ واقعے پر اظہار افسوس۔ مہندا راجپاکسے کا ہلاک ہونے والے سری لنکن شہری کی اہلیہ اور خاندان سے بھی ہمدردی کا اظہار۔ امید ہے وزیر اعظم عمران خان ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ سری لنکن وزیر اعظم۔ سیالکوٹ فیکٹری ملازمین کے تشدد سے سری لنکن شہری کی ہلاکت کے واقعے میں 2 مرکزی ملزموں سمیت 118 ملزم گرفتار۔ مرکزی ملزم فرحان ادریس اور طلحہ سمیت تمام ملزمان کا تعین سی سی ٹی وی فوٹیج سے کیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ واقعے کی ویڈیوز کا فرانزک کیا جا رہا ہے۔ واقعے میں سرکاری افسران کی مبینہ غفلت کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور اور آئی جی پنجاب کی میڈیا سے گفتگو۔ سیالکوٹ واقعے پر لفظ بے عمل ہو گئے ہیں۔ ہم نے معاشرے میں ٹائم بم لگا دیے ہیں، ان بموں کو ناکارہ نہ کیا گیا تو وہ پھٹیں گے ہی، اور کیا کریں گے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بہت توجہ چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس، پاکستان سپورٹس بورڈ کے انتظامی ڈھانچے، نیشنل سپورٹس پالیسی پر بریفنگ، نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح۔ کھیلوں میں نوجوانوں کی شرکت بڑھنے سے کھیلوں کا معیار بہتر ہوگا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نوجوانوں کو کھیلوں کی معیاری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ وزیر اعظم۔ وفاقی دارالحکومت میں مقامی حکومتوں کا نظام جلد لا رہے ہیں۔ میئر کے انتخابات براہ راست ہوں گے۔ جنوری تک تمام شہریوں کو صحت کارڈ کی سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ مختلف سیکٹرز میں 100 ٹیوب ویل لگائے جا رہے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں 10th ایونیو منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا اسلام آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اپنے ٹاور کے ساتھ۔ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ۔ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ تفصیلات میں سب سے پہلے بات کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ میں سری لنکن فیکٹری مینیجر کے اندونا قتل کو پاکستان کے لیے باعث شرم قرار دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیالکوٹ واقعے کی تحقیقات کی خود نگرانی کر رہا ہوں، گرفتاریاں جاری ہیں اور ملوث افراد کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔
श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्से ने सियालकोट में एक गिरोह के हाथों श्रीलंका के शहरी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने कहा कि हलाक होने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा दियावंदा की अहलिया और ख़ानदान से मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के अवाम को उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सियालकोट फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से श्रीलंकन शहरी की हलाकत के वाक़े में 2 मरकजी मुलजिमों समेत 118 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुलजिमान फरहान, इदरीस और तलहा समेत तमाम मुलजिमान का तयन CCTV फुटेज से किया गया। पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर और IG पंजाब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सियालकोट वाक़े की तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाक़े पर मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि वाक़े की वीडियोज़ का फोरेंसिक किया जा रहा है। इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र भी आएगा। IG पंजाब सरदार अहमद खान ने कहा कि सियालकोट वाक़े का हर पहलू से जायज़ा लिया जा रहा है। 160 CCTV कैमरों की मदद से तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सियालकोट वाक़े पर लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो। उन्होंने कहा कि ये बेहिसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। हमारे सामने मुल्कों में खून के दरिया बह गए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं और इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि सियालकोट वाक़े पर पूरी कौम शर्मिंदा है। हमें अपने जज्बात का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाहौर में रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में रज़ाकारों के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान दुनिया में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़दमा लड़ रहे हैं। किसी की नाहक जान लेने की किसी को कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सियालकोट वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करवा रहे हैं। 110 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। इससे पहले तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि हमने रेस्क्यू 1122 को बनते हुए देखा है। रेस्क्यू पाकिस्तान का मुनज़्ज़म तरीन इदारा है। आज हम रेस्क्यू 1122 की कामयाबी पर फ़ख्र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत के हवाले से रेस्क्यू 1122 हम सब के लिए मशअल राह है। इदारों का काम अवाम की खिदमत करना होता है। तमाम इदारों को रेस्क्यू 1122 से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस इदारे का अमला अपनी जान को खतरे में डालकर अवाम की हिफाजत यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि हमें एक कौम बनकर हर किस्म के हालात के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सबको पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रेस्क्यू 1122 को हर मुमकिन सहूलत और वसाइल फराहम करेगी। नाज़रीन मज़ीद खबर शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अगर सऊद तुम्हारे लिए इतना ही अहम है तो मेरे लिए अहमियत इस बात की है कि ये खित्ता एक काबिल शख्स के हाथ में हो। जुल्म और खौफ का खात्मा हो चुका है। इंसाफ फिर अपने रास्ते पर गामजन। ये अच्छी शराकत नहीं है। मुझे ऐसे ही सरदार की जरूरत है। धोखेबाजी है ये। ताल्लुकात बढ़ाने होंगे तुम्हें उनके साथ। पूरे अनातोलिया को राख का ढेर बना दूंगा। बुज़दिल हर रोज और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अर्तुल सरदार। हमारा इस्तेमाल करके उसने अलंजक से दोस्ती करने की कोशिश की। हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं। ढूंढ कर लाओ उसे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है। सानिया सियालकोट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि उनकी श्रीलंकन सदर गोताबाया राजापाक्सा से आज गुफ्तगू हुई है, उनसे बात हुई है। श्रीलंकन सदर को यकीन दिलाया है कि सानिया सियालकोट में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के अवाम को सियालकोट वाक़े पर सख्त गम और शर्मिंदगी है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। इस हवाले से उन्होंने अपना ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्रीलंकन सदर को उन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अवाम रंजीदा है और हम आपके साथ हैं, हम आपसे भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनकी आज श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्सा से गुफ्तगू हुई है। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्सा से बात में उनका ये कहना था कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को सियालकोट वाक़े पर गम और शर्मिंदगी है। 100 से ज़्यादा मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्रीलंकन सदर को यकीन दिलाया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी हैं। आप उनसे बात करते हैं इस सानहे पर। मौलाना साहब, फरमाइएगा कि मज़हब के नाम को इस्तेमाल करने वालों से अपने ही मज़हब और माशरे के इस्तेसाल को कैसे रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो सियालकोट का सानया हुआ है ये बहुत ही काबिल अफसोस है और जितनी भी इस वाक़े की मज़म्मत की जाए वो कम है। और ये एक दरिंदगी है जो कि लोगों ने वो जो श्रीलंका के जो थे उनके साथ की। और हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं इस पूरे वाक़े की जो हुआ है इसकी बाकायदा निगरानी करूँगा और जो लोग इसके अंदर मुलव्वस पाए जाएंगे, जैसे कि अभी बताया गया कि 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा जो है हुकूमत जो है इसमें अहम किरदार जो है वो अदा करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि हमें तो इस्लाम सलामती का दर्ज देता है, सब्र का दर्ज देता है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान की जान को बचाना पूरी इंसानियत की जान को बचाने के मुतरादिफ है। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कर रहे हैं? और पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो इमेज है, जहां हम कहते हैं हम पीस प्रोसेस में आगे जाना चाहते हैं, जहां हम कहते हैं कि पाकिस्तान अमन का दोस्त है, और वहां पर इस तरह के मामलात जो कि मैं समझता हूं कि अगयार की साजिश हो सकती है, मगर जो कुछ हो रहा है इस पर बहुत ज़्यादा दुख भी है, रंज भी है। मगर मैं ये समझता हूं कि इन लोगों को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। आज हुकूमत के साथ, आज हमारी अफवाज, हमारे इदारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो है ये जो वाक़या हुआ है इसको खुद देखूंगा और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए तो हमारी दुआ है अगर ये वाक़या टेस्ट केस न बना तो याद रखें फिर गली कूचों शहर और मैदानों में इसी तरह के नारे लगा कर लोग आएंगे और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होंगे। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने ये दरिंदगी की है, ये ज़्यादती की है, और इस्लाम किसी तरह भी हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो तो कहता है कि दरख्त को काटो ना और कीड़े मकोड़ों तक का कहा कि उनको न जलाओ। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और आपने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ ज़बान से दूसरा मुसलमान, और दूसरी जगह फरमाया दूसरा इंसान उससे महफूज रहे। तो ये क्या है? ये क्या हो रहा है?
میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے بھی اور جن شر پسندوں نے اور انتہا پسندوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ کوئی ایسی مطلب کہ بات شروع کر دی گئی کہ خود ہی عدالت بنا لی گئی، خود ہی فیصلے دینا شروع کر دیے گئے. یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، مولانا یہاں عبد عدلیہ الخبیر کا ایک آزاد صاحب، نظام. آپ کے قطع کلامی کی معذرت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اب تک، اس میں بیشتر ایسے ہی فیصلے کیے جاتے رہے اس گروہ کی جانب سے یا عوام کی جانب سے، موقع پر ہی خود ہی عدالت، جیسے آپ نے فرمایا کہ خود ہی عدالت لگا کر فیصلہ کر دیتے ہیں اور خود ہی سزا بھی سنا دیتے ہیں. ممبر اور مسجد کی علماء کرام کی گلی محلے میں موجود مساجد میں جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، ان کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اور ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. آئزے کے تمام علماء اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی مذہبی جو تنظیم ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہی اور ہر ایک اس کی مذمت کر رہی ہے. تو آج علماء کی اور ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر جو اخلاقیات ہیں اس کو پیدا کیا جائے، جو صبر ہے اس کو پیدا کیا جائے، جو تحمل ہے اس کو پیدا کیا جائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. آج ہم یہ کر کر کیا دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم پچھلے کئی دنوں سے اور کئی سالوں سے ایک بنا رہے تھے چیز کو، اس کو اس سانحے نے میں سمجھتا ہوں کہ ختم کیا ہے اور ہمیں پوری دنیا میں رسوا کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے ان کی طرف سے. ہم انشاءاللہ العزیز، جیسے آپ نے محراب و منبر کے کردار کی بات کی، ہم اس کردار کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جن کے اندر یہ تشدد اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار مسجد اور محراب و منبر کا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کو ادا کیا جائے گا. مگر ایسے لوگوں کو، جو لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ سانحہ برپا ہوا ہے، اس کے اندر اپنی انوالومنٹ کو ظاہر کیا اور لوگوں نے کام کیا، ان کو میں سمجھتا ہوں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ فی الفور جو بھی لوگ نشانہ عبرت بن جائیں، جو بھی لوگ اس میں آئیں وہ نشانہ عبرت بنیں. صحیح، ایسے لوگوں کو بد سے بدتر سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبد الخبیر آزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اسی پر بات کریں گے. ڈاکٹر رضوان تاج نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ہیڈ آف سائیکیٹری ہیں، ڈین ہیں پیمز میں اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت نکالا. عدم برداشت کیوں بڑھتی جا رہی ہے اتنی؟ ہاں دیکھیں، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور وہ بھی اس موقع پر جب ہمارے ملک کو ایک امیج دنیا میں بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک کو ہر طرح کے مسائل میں گھیرنا چاہتی ہیں اور ہمارا امیج جو ہے اس کو ایسے دکھانا چاہتی ہیں کہ ہم بہت ایگریسو اور ٹالرنس کے بغیر، برداشت کی طاقت کے بغیر، انسانیت کے حقوق کی حفاظت کیے بغیر معاشرہ ہے. جبکہ ہمارے قریبی ملک میں زیادہ اس سے روزانہ کے واقعات ہوتے ہیں، جیسا ہم سب کو پتہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ اب اللہ جانتا ہے کہ یہ کسی نے شرارت کی ہے ملک کو بدنام کرنے کی، یا یہ وقتی کوئی ایسے آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے کسی اور وجہ سے اور اس کی وجہ سے ایک سیریس لیول پر یہ چیز چلی گئی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ آگ لگاتے ہیں اور پھر باقی لوگ اس کو 10 گنا زیادہ بنا کے پھیلا دیتے ہیں. بالکل. یہ بتائیے گا یہاں پر کہ معاشرے میں موجود عدم برداشت کی بیخ کنی کس طرح ممکن ہے؟ بالکل، معاشرے میں جب اس وقت ملک میں حالات ہیں جو کہ جس میں ہمیں ایک دوسرے کی حقوق کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وسائل کو بانٹنے کی ضرورت ہے اور اپنے لوگوں کی اور غیر ملکی لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک میں آتے ہیں. جس طرح ملینز آف پاکستانی باہر کام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا ملک تو غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھا اور فرینڈلی ماحول سمجھا جاتا ہے.
تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہر انسان انفرادی طور پر اپنے ایموشنز یعنی احساسات اور جذبات کو قابو میں رکھے اور بالکل اس سے پرہیز کرے کہ وہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھے. اور اس ڈاکٹر رضوان صاحب، یہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایموشنز جذبات کو قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. 1 یا 2 افراد نے اشتعال دلایا. سائیکیٹری اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ اشتعال دلانے سے سمجھدار لوگ ہیں، سارے بالغ افراد نظر آتے ہیں. جب بھی ہم اس طرح کا کوئی گروہ دیکھتے ہیں، کوئی اس طرح کی کارروائی دیکھتے ہیں، اس میں تمام لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں جو کہ نوجوان ہوتے ہیں. ان کو اشتعال دلانا اتنا آسان ہے؟ جی بالکل. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ 10 سے 20% اس کی اہمیت ہوتی ہے اور باقی لوگ اس کو بڑھا کے 80-90% پہ لے جاتے ہیں. تو وہ بحیثیت باقی لوگوں کے لیے جو درمیانی عمر کے ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں ان کو چھیڑنا اور ان کو اشتعال دلانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اسی چیز سے ہمیں پہلے ہر طرح کا قدم، ایکسٹریم قدم اٹھانے سے 10 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات مجھے صحیح پتہ چلی ہے، کیا میں نے اس کی پوری تحقیق کی ہے، کیا اس میں اتنا بڑا رد عمل دکھانے کی ضرورت ہے، کیا میری یہ ذاتی حیثیت ہے کہ میں اس طرح کا قدم، اتنا بڑا قدم اٹھاؤں، یا یہ قانون والے اداروں کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہمیں بحیثیت معاشرے میں ایک سمجھدار شہری ہوتے ہوئے ہمیں اپنی لمیٹیشنز یعنی کہ حدود کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ عدم برداشت اور شدت پسندی کو پروان چڑھانے کے حوالے سے کہیں پر کوئی منصوبہ سازی ہو رہی ہو، کوئی ایک انسان کیا کردار ایسے موقع پر ادا کر سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں. اب جتنا زیادہ آپ اس واقعے کی تصویریں دکھائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو لوگ اس چیز کو کاپی کرتے ہیں. تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ میڈیا پہ اس کی تصویریں بالکل نہیں آنی چاہیے. اس واقعے کا افسوس اور باقی چیزوں کا 90% کوریج ہونی چاہیے، جبکہ ایکچوئل واقعے کا 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز، یا بچے دیکھتے ہیں یا بڑے دیکھتے ہیں یا جوان لوگ، خاص طور پہ جوان لوگ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل بات ہے، وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات کو جتنا آپ ہوا دیں گے اتنا زیادہ یہ بالکل صحیح. ڈاکٹر رضوان امتیاز صاحب، میڈیا نے بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر اگر اس واقعے کی بات کی جائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت نکالا اور بات کی. عدم برداشت کو کم کرنے کے لیے اور خاص طور پر انفرادی طور پر ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، خاص طور پر اقلیتوں کی طرف سلوک، اور اس کے ساتھ غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ امیج پوری دنیا تک جاتا ہے. بالکل ناظرین، یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک. آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں پاکستان سویٹ ہوم. آپ کو ہم فرشتوں اور پریوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. شمالی وزیرستان میں تقریباً وہاں پہ 150 میرے بیٹے وہاں پہ موجود ہیں. کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ انجینئر بننا ہے. ویری گڈ. دیکھیں بلوچستان سے باغبان چمن تو سلامت رہے. استاد محترم عبدالستاریدی صاحب مجھے 1000 روپے کا نوٹ دیا تھا اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اس کو 1 ارب روپیہ سمجھ کے رکھنا ہے. عمران خان صاحب بھی یہاں پہ تشریف لاتے رہتے ہیں. لوگ دور دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ کلاشن کوف لہراتا پھر رہا، آپ جا کے سیدھا اسے جپھی ڈال لیتے ہیں. وہ بھی ایک معجزہ تھا، وہ میرا ایک ٹیسٹ تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کسی ملٹری کالج میں آ گئی ہوں. سارے بیٹوں کو یونیفارم پہننے کا بڑا شوق ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پاکستان زندہ باد.
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तानी नौजवानों में दुनिया का हर मैदान फतह करने की सलाहियत मौजूद है। खेलों में नौजवानों की शिरकत बढ़ने से खेलों का मयार बेहतर होगा। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतजामी ढांचे की असर नौ तश्कील पर आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी सतह पर खेलों में शिरकत को यकीनी बनाकर बासलाहियत नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नौजवानों को खेलों की मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगा। इजलास को बड़े शहरों में हॉकी ट्रफ के हवाले से बताया गया। इस्लामाबाद में इस पर काम मुकम्मल है, जबकि वाकेंड, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद और गिलगित में इस पर काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म ने जारी मंसूबों पर काम मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। इससे पहले इजलास को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतजामी ढांचे, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और इस हवाले से सूबों से मुशावरत और खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का आईनी मुसवदा तैयार है, जिसके तहत बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान की तादाद को महदूद रखा गया है। बोर्ड के ख़ियालात जिम्मेदारियों का तयन करते हुए मुल्क में खेलों के फ़रोग़ और मुस्बत मुकाबले की फ़ज़ा का क़याम का ख़ास ख्याल रखा गया है। पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की लॉन्चिंग में 2 दिन बाकी रह गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के सरबराह उस्मान डार ने प्रोग्राम का वीडियो टीजर ट्वीट किया है। खुसूसी तराने के बोल हैं, गली से ग्राउंड तक, फाइनल राउंड तक। तराने की शूटिंग में खुद उस्मान डार ने भी हिस्सा लिया है। नाज़रीन, मुल्क के सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आज़म इमरान खान 6 दिसंबर को कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इजरा करेंगे। तफसील सदफ अफजल से। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए नौजवानों की तवानाई को बरूए कार लाने पर खसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में मुअव्विन खसूसी उस्मान डार कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशां हैं। नौजवानों की कारोबारी सलाहियतों को इस्तेमाल करके मुआशी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन है। मुअव्विन खसूसी उस्मान डार वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर खेलों के शोबे पर भी खसूसी तवज्जो दे रहे हैं और जल्द ही मुल्क के सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का इजरा होने जा रहा है। इसी सिलसिले में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को गैर निसाबी और खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल रखने के लिए 4 अरब रुपए के 4 नए मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिसमें कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव जैसा मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है। 6 दिसंबर को कामयाब जवान कन्वेंशन में स्पोर्ट्स ड्राइव के इजरा के मौके पर टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स अकेडमीज की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज किया जाएगा। मुल्क भर में 11 से 25 साल के नौजवान बेशमूल खवातीन के लिए खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। टैलेंट हंट से बासलाहियत खिलाड़ियों की निशानदही और इंतखाब के लिए तमाम सूबों में खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे और 1 करोड़ नौजवानों को सिलेक्शन के अमल से गुजारा जाएगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का इजलास पाकिस्तान की मेज़बानी में 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान पर बर वक्त तवज्जो न दी तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अफगानिस्तान में ख़राब माशी हालात के भयानक नताइज होंगे, जिससे पड़ोसी ममालिक और यूरोप भी मुतासर होगा। मज़ीद तफसील बता रहे हैं ज़ीशान भट्टी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गैर मामूली इजलास 41 साल बाद 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में P5 ममालिक, यूरोपीय एजेंसी समेत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दे रहे हैं। 19 को इंशाल्लाह
ये एक गैर मामूली काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास होने जा रहा है। हमने इस इजलास की अहमियत और दीगर ओआईसी ममालिक से जब राब्ते किए तो उनकी तवज्जो इस तरफ भी मबजूल कराई कि इंटरनेशनल असेसमेंट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस नौइयत की है कि अगर फौरी तवज्जो न दी गई तो तकरीबन निस्फ आबादी यानी कि 22.8 मिलियन अफ़गान जो हैं वो फूड शॉर्टेजेस का शिकार हो सकते हैं। वजीर हारजा का कहना था पूरी दुनिया को अफगानिस्तान के मसले को समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक को हित्ते के हवाले से परेशानी लाहक है। अफगान भाइयों की मदद के लिए भारत के साथ तावन करने को तैयार हैं। खुदा न खास्ता वहाँ एक दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट आएगा और वो ट्रिगर करेगा, वो जन्म देगा एक नए मैस एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज को। ईरान भी फिक्रमंद है, ताजिकिस्तान भी फिक्रमंद है, जितने ममालिक जिनके बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ उनको ये तशवीश है। सियालकोट वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए वजीर हारजा ने कहा कि सियालकोट का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वजीर आज़म मामले की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाक़ये के जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। श्रीलंका की हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और मुतासरा खानदान से राब्ता करके उनका मौक़िफ़ भी ले रहे हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ मजीद खबरें भी कैबिनेट आवर का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां यकसानियत यानी सेमनेस को सेलिब्रेट किया जाता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे वो डॉक्टर नहीं मिला जिसका मुझे इलाज करना चाहिए था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बाहर चला जाता हूँ और वहाँ जाके इसी चीज़ में स्पेशलाइज करता हूँ। मैं मतलब इस कैमरे पे ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह जैसी हसन को दी, जैसी मुझे दी, ऐसी अनएजुकेटेड मदर अल्लाह सबको दे। अवेयरनेस सोसाइटी में इतनी हो कि जिस घर में डिसेबल बच्चा हो वो पहले अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें और लेकर राइट प्लेस पर जाएं जहाँ पर के रिहैबिलिटेशन सर्विसेज अवेलेबल। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे इस चीज़ पे गाइड किया कि तुम्हारे पास कोई स्किल होगी जो तुम सीखोगे और उस स्किल के ऊपर तुम दुनिया को मनवा सकते हो। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह दस्तूर। कैबिनेट आवर में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। यहाँ आपको बताएं वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि इस्लामाबाद को जीटी रोड से मुंसलिक करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगले चंद दिनों में 10th एवेन्यू पर काम जल्द शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि जून तक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 100 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हस्पतालों के 2 नए मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा जनवरी तक इस्लामाबाद के रहायशियों को सेहत कार्ड फराहम कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान ने अपने खिताब में कहा कि इस्लामाबाद में तरक्याती काम जारी हैं। शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IJP रोड को 4 रोया और सिग्नल फ्री बना रहे हैं।
वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि अगर नून लीग की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो मुल्क तबाही के दहाने पर जा ठहरता। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे और आज भी मईशत के हवाले से गलत हैं। हमने नून लीग की पॉलिसीज़ को रद्द करके मईशत को बेहतर किया है। हमाद अजहर ने कहा कि आलमी मंडी में जैसे ही कीमतें कम होंगी, पाकिस्तान में भी महंगाई में कमी होगी। अगर 2018 में हमने मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा होता तो अक्टूबर या नवंबर 2018 में मुल्क ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था और उसके बाद हमारी मईशत में जो तबाही का तूफ़ान आना था वो पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा था। तो इनकी पॉलिसियों को रद्द करके हमने मईशत को बचाया, फिर उसका ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े और फिर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 5% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए। आलमी मंडी में हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, इवन खाने पीने की चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं और जब बाहर की आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ जाएं तो फिर पाकिस्तान में भी बढ़ जाती हैं। और इस वक्त सिर्फ हम ही नहीं, हमारे खित्ते में बाकी मुल्क और अमेरिका, यूरोप और ये तमाम मुल्क जो हैं, जो जिनके पास बड़े वसाइल हैं इस महंगाई से लड़ने के लिए, वहाँ भी 20-20 और 30-30 साल से ज़्यादा महंगाई की शरह चल रही है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब जो कीमतों का जोर टूट रहा है, ये जब टूटेगा तो यहाँ पाकिस्तान में भी टूट जाएगा। हमेशा की तरह कायदे इस पर इख्तलाफ जो हैं, मईशत होए या कोरोना होए या अब का इनका बयानिया हो, उसमें वो गलत हैं और वक्त इन्हें साबित करेगा कि ये गलत है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब मौसूल हो गए हैं। मुशीर ख़जाना ने अपने ट्वीट में कहा कि रकम भिजवाने पर सऊदी फरमारवा और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि हर अच्छे काम में सिंध हुकूमत रोड़े अटकाती है। अस्पतालों में डॉक्टर और वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। स्कूलों में असातिज़ा नजर नहीं आते। सिंध के सरकारी इदारों में जराइम पेशा अफराद को भर्ती किया गया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मवासलात ने कहा कि सिंध में तेज़ी से अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। वडेरों के खिलाफ जो खड़ा होता है उसे मार दिया जाता है। उम्मे रुबाब चांडियो हर जगह इंसाफ मांगती फिरती हैं। मुराद सईद ने कहा कि कराची में सड़कें वफाकी हुकूमत बना रही है। कराची ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। सिंध हुकूमत से तो नाले भी साफ नहीं होते। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम की मदद की। बिलावल भुट्टो ने कोरोना के दौरान राशन का वादा किया जो किसी को नहीं मिला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि मुल्की आइन शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल ज़मानत देता है। वकला बरादरी कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। लाहौर में पंजाब बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वकला का काम जज साहिबान की मुआवनत करना है। इस जिम्मेदारी से बेहतर तरीके से ओहदा बरा होने के लिए वकला को मुल्की क़वानीन से मुकम्मल आगाही और अपने तर्ज़ अमल में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मुल्की अदलिया पूरी तरह से आज़ाद है और तमाम जज साहिबान सिर्फ आइन और क़ानून के तहत फ़ैसले देते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात अदलिया के लिए बड़ा मसला है। मुक़द्दमात को जल्द निपटाने के लिए बार और बेंच को मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में कमी वाक़ हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 431 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.91% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा 8 मज़ीद अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 28,761 हो गई है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 47,084 अफराद के टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक 858 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी इदारे सेहत के साइंसदानों ने लोगों पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से खौफ का शिकार न हो, क्योंकि अब दुनिया में 1 साल पहले वाली सूरत हाल नहीं है। साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अभी ये वाज़ेह नहीं कि क्या ओमिक्रॉन एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये कहना कबल इस वक्त होगा कि क्या हमें इस नई किस्म से निपटने के लिए नई वैक्सीन बनाना पड़ेगी। ओमिक्रॉन वायरस एशिया, अफ्रीका, अमरीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के 38 मुल्कों में मौजूद है,
जबकि जनूबी अफ्रीका के 9 में से 7 इलाकों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन सबसे पहले इसी इलाके में सामने आया था। स्वामीनाथन ने कहा कि ओमिक्रॉन बज़ाहिर तेज़ी से फैलता है और जनूबी अफ्रीका के सामने आने वाले आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों की तादाद हर रोज़ दुगना हो रही है। पनाहगज़ीनों के आलमी इदारे UNHCR ने खबरदार किया है कि लाखों अफगान भूख और फाका कशी का शिकार हैं, जिन्हें इमदाद की फौरी ज़रूरत है। इदारे ने कहा है कि तनाज़े और लड़ाई के नतीजे में अंदरूनी मुल्क बेदखल होने वाले 35 लाख से ज़्यादा अफगानों के पास शिद्दत इख्तियार करते हुए मौसम के मुकाबले के लिए दरकार खुराक, पनाहगाह और गर्म कपड़े नहीं हैं। बेशुमार ख़ानदान ऐसे हैं जिन्हें पनाहगाहों, गर्म कपड़ों और ईंधन की फौरी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है, जबकि तिब्बी रसद और ज़िंदगी बचाने के ज़रूरी सामान की इमदाद भी फ्राहम नहीं हो पा रही। मुल्क की आबादी के 55% हिस्से को सख्त फाका कशी का सामना है, जबकि तकरीबन 90 लाख नफूस को कहत साली दरपेश है। लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया गया है, जिस पर उनके हामी खुशियां मना रहे हैं। गुज़श्ता माह इंतखाबी कमीशन ने सैफुल इस्लाम के कागजात नामज़दगी को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर उन्होंने अदालत में अपील दायर की थी। ताहम अब अदालत ने उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। लीबिया के पहले बराह रास्त सदारती इंतखाब का पहला मरहला 24 दिसंबर को होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात फ्रांस से 14 अरब यूरो मालियत के 80 राफेल जंगी तैयारे खरीदेगा। इस मुआहदे का ऐलान फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान अबू धाबी के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात के बाद किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों यूरो के दीगर मुआहदे भी तय पाए हैं। इमारात फ्रांसीसी दिफाई सनत का सबसे बड़ा खरीदार तस्वुर किया जाता है। इस नए ऑर्डर के तहत UAE 12 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी खरीदेगा, जिनकी कीमत 17 अरब यूरो से ज़्यादा है। फ्रांसीसी सदर खलीजी ममालिक के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद वो कतर और सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। और नाज़रीन, वासा के वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज़ महमूद ने कहा है कि अवाम को पीने के साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने और निकासी आब की सर्विस को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल दस्तयाब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की नुमाइंदा सिद्रा मलिक को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि वासा में जितने काम 3 बरसों में हुए, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आइंदा 2 बरसों में अवाम को उनकी दहलीज पर पीने का साफ पानी फराहम कर दिया जाएगा। लोगों के मसाइल वासा में अब हल हो रहे हैं। वासा डिपार्टमेंट लोगों के लिए अप्रोचेबल हो गया है। ये इस्लाहात कैसे आई, 3 साल में वासा डिपार्टमेंट ने कितना काम किया, ये जानने के लिए हम आए हैं वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद साहब के पास। 3 साल गुजर गए, वासा में क्या रिफॉर्म्स लेकर आए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ रहे हमारे हेड ऑफिस में। 3 साल में अगर मैं समझता हूँ कि जितने काम वासा ने किए हैं, तो इसके लिए आपके प्रोग्राम में शायद 1 घंटा भी कम हो, तो क्योंकि हमारे पास चंद मिनट है, तो मैं जो मेजर काम हुए हैं, सबसे पहले जो हुआ है कि जो हमने आने वाली नस्लों के लिए ये किया है कि वासा का जो अंडरग्राउंड पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको एक्वाफायर हम कहते हैं, ये सस्टेन हो गया है। ये पुरानी की माजी की हुकूमतों में 1 मीटर पर साल वो नीचे जा रहा था, जो कि एक टाइम आना कि लाहौर खुश साली का शिकार हो जाना था। हमने मुश्किल फ़ैसले लिए, टाइमिंग कम की, कंजर्वेशन की नई पॉलिसियाँ बनाई, वाटर कंजर्वेशन के जो तरीक़ेकार हैं इंट्रोड्यूस कराए, सेमिनार्स किए, मस्जिद में फ्लेक्सेस लगाई, अवेयरनेस कैंपेन्स की। और मैं लाहौर के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके वसातत से कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। पहले तो लोगों को समझ नहीं आई थी, लेकिन जब हमने उनको बताया कि ये कितना हम मुश्किल की मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं कि कल को शायद लाहौर में को पानी अवेलेबल ना हो 20-25 साल में, तो अब ये पानी जो है वो सस्टेन हो गया, अब ऊपर आना शुरू हो गया। पहले भी कंप्लेंट सेंटर मौजूद था, लेकिन फरसूदा जिसको हम कहते हैं
कि आप जाएं, आपको एक पर्ची दी जाएगी, लंबा सिलसिला था। पर्ची ही आपको दी जाएगी, और फिर किसी अफसर को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो नीचे लेवल पे एक पर्ची दी गई है, उसमें काम हुआ कि नहीं हुआ। हमने आके कंप्लेंट सेंटर को डिजिटलाइज कर दिया। आपको किसी कंप्लेंट सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, 1334 पे कॉल करें। वो कंप्लेंट जो होती है वो मेरे ऑफिस जाती है, एमडी ऑफिस जाती है, डीएमडी ऑफिस, हमारे वहाँ पे डैशबोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर होती है। अगर वो टाइम पे मुताबिक वो हल ना हो तो वो एस्केलेट हो जाती है, वो रेड हो जाती है। मुझे भी पता चल रहा है कि फ़लाँ टाउन में फ़लाँ बंदा काम नहीं कर रहा, फिर हम उनको शोकाज नोटिस, और रात को उसका एनालिसिस होता है। फिर हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी मुतारफ़ करा दी है कि अगर आपके सिर्फ अपने फ़ोन पे आप वासा CMC के नाम पे जो है वो अगर एक डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन, तो वहाँ आप बैठे करें और आपको एक कंप्लेन नंबर आएगा, जो एक समझ लें कि एक FIR है, वो तब तक नहीं बंद होगी जब तक वो मसला हल होता है। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हमारा अब जो वासा का काम है ये एक तो तेज़ी से भी हो रहा है और एक इसकी क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा। पाइपलाइन में हमारे क्या मंसूबे, हम करना क्या चाह रहे हैं। एक तो ये है कि हम टैप वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर देना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमारा सरफेस वाटर के पानी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नहरी पानी को पीने के काबिल बना के लोगों को सप्लाई देना चाहते हैं, जैसे कि उनको बोतल ना ख़रीदनी पड़े, उनको उनके घर में जो है वो पानी हो। ये एक पाइपलाइन में हमारा मंसूबा है। दूसरा, हम लाहौर के जो तमाम नाले हैं उनको हम टनल बोरिंग का एक मंसूबा हमारा पे काम हो रहा है और काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। पहला नाला हम करने भी जा रहे हैं जो कैंट ड्रेन है, कि तमाम नाले जो है वो टनल बोरिंग के ज़रिए 30 फुट नीचे जो आपको नज़र ही ना आए, और ये जो नाले करंट हैं इस पे हम जो है वो मानसून का पानी स्टोर करने जा रहे हैं, जहाँ पे फ़िशिंग भी हो सकेगी, बोटिंग भी हो सकेगी, इर्द गिर्द रेस्टोरेंट भी बन सकेंगे। ये एक हमारा है। और तीसरा ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दरिया में जो पानी हम डालना चाहिए, क्योंकि सारा हमारा जो वेस्ट वाटर है, लाखों क्यूसिक पानी जो है वो एवेंचुअली वो जाता है दरिया में। तो दरिया में हम गंदा पानी ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम अब जो 7 जगह पे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के मंसूबे हमारे पाइपलाइन में है, कि यही पानी जो है हम ट्रीट करके दरिया में डालें। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर से डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें लाहौर से 59, मुल्तान से 4, फैसलाबाद से 3, जबकि गुजरावाला और साहिवाल से 2-2, बहावलपुर, नारोवाल और शेखुपुरा से 1-1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक मौसर इकदाम की बदौलत सूबे भर में डेंगू के केसेस में वाज़ेह कमी आई है। नाज़रीन, बुल्गारिया में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से वेबिनार हुआ। इवेंट का एहतमाम पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बुल्गारिया टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स की तंजीम के ताउन से पाकिस्तानी सफारत खाने ने किया। बुल्गारिया की सियाहत की वजारत और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के नुमाइंदों ने भी तकरीब में शिरकत की। बुल्गारिया में पाकिस्तान की सफ़ीर मरियम आफ्ताब ने इफ्तिताही कलमात में इवेंट के इनेकाद पर PTDC और बुल्गारिया के टूर ऑपरेटर्स की तंजीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बुल्गारिया के सयाहों के लिए पाकिस्तान बहुत से तारीख़ी, सकाफती और खूबसूरत पहाड़ी मकामात हैं। सफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत और सियाहत के फ़रोग़ के लिए वाशिंगटन DC के स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तर्जुमान पाकिस्तानी सफारत खाना मरिया शाहिद ने पाकिस्तान की सकाफत, सयाहत और तारीख के फ़रोग़ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर तलबा में पाकिस्तान के पासपोर्ट की नुमाइंदगी करने वाले कार्ड्स तकसीम किया गया और कार्ड्स पर एंट्री स्टैम्प भी लगाए गए। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने तलबा को सफारत खाना पाकिस्तान दौरे की दावत दी। तकरीब के अख्ताम पर तलबा ने पाकिस्तानी पासपोर्ट कार्ड्स और नक्शे पर पाकिस्तान का वर्चुअल टूर किया और उर्दू हरूफ तहज्जी भी सीखे। इस मौके पर तलबा को पाकिस्तानी खाना भी पेश किया गया। नाज़रीन, वफाकी दारुल इस्लामाबाद में आई है गुले दाऊदी की बहार। इस्लामाबाद में जारी नुमाइश से शहरी महसूस हो रहे हैं। इन फूलों का मौसम कब आता है, जानिए मरियम मलिक की रिपोर्ट में। जाड़े के मौसम में दिल को लुभाते फूलों की बहार है। इस्लामाबाद में खिज़ां रुत में बहार के नज़ारे हैं। इस्लामाबाद के रोज एंड जैस्मिन गार्डन में गुले दाऊदी के खिले फूल आंखों को भले लग रहे हैं। तरोताज़गी और खूबसूरती की अलामत ये फूल खिज़ां में खिलते हैं। गुले दाऊदी पतझड़ और मौसम सरमा के आगाज का फूल है।
इसके बहुत से रंग और बेशुमार इकसाम हैं। इस सीज़न में गुल दोदी का फ्लावर होता है। गुल दोदी की तकरीबन तमाम अकसाम जो हैं मुख्तलिफ स्टाइलों में सजाई गई हैं। इसमें तकरीबन 10 अदारों ने पार्टिसिपेट किया है। खूबसूरत बनावट और नीम दायरा पत्तियों वाला गुले दाउदी लोगों का मनपसंद फूल है। इस फूल के बीज नहीं बनते। शहर बेमिसाल में गुले दाउदी की नुमाइश शहरियों को अपनी तरफ खींच रही है कि एक अरसे के बाद बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग हो रही है यहाँ पे आके, और इन्होंने मेंटेन बहुत खूबसूरत किया है। स्टॉल्स बहुत खूबसूरत लगाए हैं, इतना कलरफुल कि आपका वाकई दिल खुश हो गया है। अच्छा लगा कि इतनी कलरफुल जगह पे हम निकले हैं। बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स हैं और स्पेशली बड़े साफ़ सुथरा माहौल है, एरिया बहुत अच्छा है, तो लोग आके एंजॉय करेंगे, देखेंगे। इतने अच्छे कलरफुल लोगों ने इतनी मेहनत की हुई है जिससे इतने अच्छे फूल निकले हुए हैं। इस मौसम के तो रंग वैसे ही बड़े खूबसूरत होते हैं और फूलों की वजह से एक वो ऐड ऑन हो गया कि अमेजिंग, और ये तो हैं ही सर्दियों के फूल, तो इसकी खूबसूरती और उसने इन्हांस कर दिया है। गुले दाउदी की नुमाइश में फूलों की सजावट के जापानी फन एकेबाना को भी शामिल किया गया है। इसमें फूलों की तादाद कम जबकि पत्तियों, शाखों और घास को इस्तेमाल किया जाता है। खिज़ां में फूलों की बहार ने रंग जमा रखे हैं। गुले दाउदी की दिल फरेबी जाड़े के मौसम में दिल को मोह लेती है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। छुट्टी के रोज़ गुजरात के मकामी स्कूलों के बच्चों के PTV न्यूज़ आमद। तलबा ने PTV न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि घरों में बैठकर नशरियात देखने के बजाय न्यूज़ रूम जाकर खबरें बनाने का मरहला निहायत सबक आमूज रहा। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने देखे। हम घर में बैठ के टीवी पे तो ये सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की, उसके बिहाइंड द सीन्स हमने आके देखे। स्टूडियो रूम हमने विज़िट किया, प्रोडक्शन रूम हमने विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी PTV न्यूज़ के दौरे पर खुश हैं। उनका कहना था कि आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न कौमी ज़बान की तरवीज में अपना किरदार बखूबी निभा रहा है। और यहाँ आके मुझे एक और चीज़ की बड़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई है कि उर्दू बोलने वाले अभी भी बाकी हैं। एक कैसे महसूस हुआ है ना कि वो एक शेर है ना कि बड़े सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, बड़े सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और सदफ अली खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए PTV न्यूज़।